But like now, like I'm in like more in insurance and investment business. तो बेसिकली यूएस एंड कनाडा मिला के टोटल 3,000 के ऊपर फंड्स है. Everyone has to at least think about it, and at least some things, at least one insurance, like term insurance, like permanent insurance or whole insurance, anything like that. इसीलिए यहाँ पे कनाडा में एक कम्युनिटी है, जूइश कम्युनिटी. वो ये चीज़ बहुत बिलीव करती है. जैसे ही घर में कोई बॉर्न होता है छोटा बच्चा, पहले लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं परमानेंट. मतलब कि जब आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो यू विल हैव अ पोर्टफोलियो एंड एन अमाउंट जो ओवर द टाइम ग्रो होता है, जिसके बेस पे आप रिटायरमेंट भी ले सकते यस, एज इंश्योरेंस में एज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हो. एज एंड देयर हैबिट्स, हाउ डज इट, लाइक कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, हाउ डज इट अफेक्ट योर इंश्योरेंस? मतलब अगर एक स्मोकर को भी 500,000 का कवरेज चाहिए कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर, दे वुड पे डबल. पेरेंट्स यहाँ पे आए थे विजिटर पे, तो विजिटर वीज़ा इंश्योरेंस लिया था, राइट. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई क्लाइंट लाइक आफ्टर 2 months. उसकी मदर को हार्ट अटैक आ गया. बिल बना 120,000 का. उसके ऊपर 20 years का काइंड ऑफ मॉर्गेज जैसे डाल दिया. एवरी मंथ दे हैव टू पे. तो हमने उसको 5 लाख का चेक दिया था. बैक होम में इंडिया में हमारे पास एफडी नहीं होती है कि आपने 10 साल की एफडी कराए तो फिक्स आपको इतने डबल ट्रिपल वाटर जो भी है मिले, वो ऐसे है. लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंश्योरेंस बाई कर रहे हो, आप होल लाइफ में ना जाए. You're saying कि even if you are a student, you can invest. यू कैन And the earlier you start, the better it is for you in the long run. कोई आपको ऐसे बोले कि ये चीज़ में आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, वो गलत बोल रहा है. कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट दो. मैंने पे किया 7 years, मैंने और मेरी वाइफ के लिए. आई पेड ऑलमोस्ट $15,000. देन आई स्विच टू कनाडा की लाइफ के हिसाब से मुझे लगता है कि एवरीवन हैज़ टू बी लाइक एनीथिंग लाइक टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट इंश्योरेंस, कुछ भी होना चाहिए कि क्रिटिकल लाइफ इंश्योरेंस कुछ भी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. Where does the money go specifically? कि बेसिकली इन कनाडा देयर आर लाइक टू थिंग्स. Welcome again to Videsi Talks. आज हम बात करने वाले हैं about something that a lot of people don't understand, or maybe they understand but don't know how to get into it. Uh, if you call it an investment, it's a correct term. If you call it insurance, it's a correct term as well. It gives you a flexibility, it lets you be free with your life as well. It gives you a kind of a protection that you need as well. And gives you that peace of mind, especially if you have a family. जिन आप अगर आप आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि करनी चाहिए. आज के जो हमारे गेस्ट है, हिज नेम इज़ निकुंज. A little bit about Nikunj. Nikunj is a professional here in Canada, and he's also in the insurance business. So today we're going to talk about what kind of insurances are there, what is more suitable for somebody who's a family man or somebody who's a student, or and everything in between. So we're going to talk about that. We're going to understand why insurance is important and every aspect of it. So yeah, that's what we're gonna do today. Please enjoy today's episode. Welcome, Nikunj. Welcome on Videsi Talks. Before we get started with the episode, how are you today? I'm good, not bad. Okay. Had a long day. Busy with a few appointments, went to office, and then I just headed here. So Okay. Not bad. All right. So आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, it's about, if you call it an insurance, investment, or whatever, or everything in between. We're gonna talk about that. So tell me that before we jump into all the serious stuff, tell me about yourself. How long have you been here in Canada? आप आपकी जर्नी यहाँ कैसे स्टार्ट हुई? इससे पहले आप क्या करते थे? और what brought you into the insurance industry?
Actually, I'm born and brought up like Gujarat, India, right? And like I studied in accountancy. Like I did bachelor in accountancy, and then I did my master, right? And then after I got opportunity to go to Africa, East Africa, Mozambique. Okay. Then I worked there like almost like 5 years, and then after I came to Canada in 2016. How was the experience in Africa? Like culturally, because I know African culture is much different than Indian culture and then in Canadian culture. It was like I can say it's like a really good experience for me, like because I learned so many things. बहुत चीज जानने को मिली, पता चली. ओके, लाइक इंडिया में इंडिया में भी मैंने वो काम किया था, थोड़ा काम किया था, पर उसके बेस पे लाइक मैं वहाँ पे गया था. पर अगर काम करने की अगर बात करें तो बहुत डिफरेंस था कि इंडिया में थोड़ा लाइक इंडिया में तो अलग अलग तरीके से काम होता है, वहाँ पे अलग तरीके से काम होता है. पर आई लर्न लाइक सो मैनी थिंग्स एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस. लाइक आई वर्क देयर 5 years. Oh, nice. Yeah, it was good experience. And then after I moved to Canada like in around 2016, Okay. and then after I start to work, and then after later on I jump into the insurance business, insurance and investment business. कल्चरल शॉक लगा था इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से कनाडा. डिफरेंस तो है, राइट? क्योंकि बेसिकली बाहर के देशों में इतना लाइक कि हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते चीज़ें, राइट? पर लाइक वहाँ पे भी इंडियन कम्युनिटी थी, तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें होती थी कि जैसे हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं कि सारे त्योहार होते हैं, तो वहाँ पे भी होता था. तो और डिफरेंट का थोड़े तरीका अलग था, पर वो भी थोड़ा मज़ा अलग था. और फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी अलग तरीके से सारी चीज़ें होती है, तो लाइक इट्स ऑल क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? लाइक द लाइफ दैट यू हैड इन और द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन अफ्रीका और आई मीन इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते. बट इंडिया तो इंडिया है, वो कंपैरिजन तो आएगी ही नहीं. पर या मुझे ऐसे लगता है अभी कि लाइक मैं अफ्रीका की लाइफ मिस ओह करता हूँ. रियली? या मैं मिस करता हूँ दैट्स एन इंटरेस्टिंग. कि वहाँ पे लाइक कि अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे. लाइक अगर मैं वहीं पे होता तो शायद आज मेरा बिजनेस होता, मैं लाइक कहीं और बड़ी पोजीशन पे होता, हो सकता है. मैंने देखा है ये बहुत सारे लोग हैं जो अफ्रीका में रहते हैं, जो इंडियंस हैं. दे माइग्रेटेड लाइक बैक लॉन्ग टाइम बैक, या लॉन्ग टाइम बैक, राइट? बट दे आर वेरी रिच फैमिलीज़ इन मोस्ट ऑफ अफ्रीका. द इंडियन हैज 90% इंडिया हैज अ बिजनेस एंड दे आर लाइक सुपर रिच. या सो मैं जिसके यहाँ पे रह रहा था उसकी बात करूँ तो वो भी ऐसे ही था कि लाइक इंडियन फैमिली थी, लाइक लेकिन बहुत टाइम पहले वहाँ पे मूव हो गए थे. तो पर इट्स लाइक दे आर लाइक सुपर रिच. हुँ, यू कान लाइक और लाइफस्टाइल भी अगर कंपेयर करें यहाँ से कि इंडिया से, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल थी वहाँ पे. राइट. तो वो टाइम मैं मिस करता हूँ कि शायद वहाँ पे होता तो शायद मैं कहीं और होता. पर आज यहाँ पे हूँ तो अलग अलग लेवल पे हूँ, पर लाइक आई एम एंजॉयिंग. या अच्छा है, यहाँ पे भी लाइफ अच्छी है. वी लाइफ कैन नॉट से इट्स बैड बट इट्स गुड. या इट्स गुड. दे आर लाइक एवरी डे, दे आर लाइक चैलेंज या in every day, but like that's good. You are going in good way, right? या So that's the part, सो part of life, right? आप अफ्रीका थे, अफ्रीका से आप कनाडा आए, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे मैं आके फिर क्या किया आपने? मैं वैसे पीआर से ही आया था यहाँ पे कनाडा कनाडा में. लाइक मैरिज करके मैं यहाँ पे आया था. तो आने के बाद मैंने इनिशियल स्टेज में वैसे मैंने पढ़ाई करनी थी, क्योंकि लाइक आई हैड अ मास्टर डिग्री, राइट? लाइक इन बैक होम. सो मुझे पढ़ाई करनी थी, पर आई डोंट नो, इनिशियल स्टेज में मैं सोच रहा था चलो कुछ ना कुछ करे, राइट? तो मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने अमेज़न के साथ काम स्टार्ट किया. स्टिल आई एम विद अमेज़न almost like 9 years. वाओ! I started in 2017. Still I'm with Amazon. But like now, like I'm in like more in insurance and investment business. राइट. I'm सो in, व्हाट ब्रॉट यू टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री? so basically there are so many things कि इसके पीछे रीज़न था कि मैं पहले से ही बैक होम से मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस मेरे पास था, इन्वेस्टमेंट मैं करता आया हूँ, राइट?
और मेरे ब्रदर ने मुझे काफ़ी, कज़िन ब्रदर है मेरा, तो उसने मुझे काफ़ी नॉलेज दिया था इस चीज़ों में, और स्टॉक मार्केट में भी मैं इन्वेस्ट करता था। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो भी इंश्योरेंस में था। ये ऑलवेज़ मेरे साथ रहता था, ऑलवेज़ इंश्योरेंस की बातें करता था। मुझे जाना तो वैसे था नहीं इंश्योरेंस में, पर इन्वेस्टमेंट में मैं थोड़ा अच्छा था, और इवन मेरे पास भी काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है आज भी। तो बैकग्राउंड तो पहले से ही वो फाइनेंस तो था ही, राइट? तो वो एक पार्ट था, और फिर जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने देखा कि लाइक मोस्टली लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट में इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं तो सोच ही रहा था कि मैं इसमें अभी सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करूँ। पर एक चीज़ ऐसे भी मुझे थोड़ा बैक कर रही थी कि लाइक मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, राइट? क्योंकि ज़्यादातर लाइक मार्केट में काफ़ी लोग हैं कि जो अपने इंसेंटिव के लिए लाइक कि चीज़ें बेच देते हैं फॉर द कमीशन। फॉर द कमीशन। तो मुझे ये नहीं करना था पहले। तो लाइक मैंने टाइम लिया, सोचा, फिर मैंने वो अदर वे से सोचा कि लाइक ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है तो किसी का अच्छा करने का। चलो लोग कर रहे नहीं कर रहे मुझे नहीं पता, कर रहे मैंने सुना है। पर चलो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि मैं लोगों का अच्छा कर सकूँ। तो इसीलिए मैं इसमें आया, ये बिज़नेस में आया कि राइट। मैं एटलीस्ट कि चलो जिसके पास नॉलेज नहीं है तो मैं उसको नॉलेज दे सकूँ कि अच्छा कर सकूँ। तो लाइक आई विल बी मोर। मैंने देखा, ये एक मिलेनियल मेंटालिटी रही है पहले से। अगर आप मैं अगर अपनी बात करूँ, तो फैमिली में मेरे पापा और जितने भी लोग मेरे अराउंड थे, उनके भाई और सारे, they had their portfolio, they were doing investment and stuff as well, but they were also कि हाँ, एक इंश्योरेंस बाय करना है। अगर मुझे मुझे याद है कि मेरे पापा मुझे कहते थे कि जैसे तू 18 साल का होगा, हम तेरी एक पॉलिसी ले लेंगे। तब मुझे समझ में नहीं आता था इतना सारा कि पॉलिसी क्या होती है, क्यों लेनी है, दिस एंड दैट। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे-ऐसे होता है, कि इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट यू पे, दैट्स नॉट गोना वैनिश, you're gonna get the money back at certain level in your life, बट आपको एक इंश्योरेंस भी मिलता है, एज़ इन लाइक हेल्थ कवरेज, कि अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ देयर फॉर यू यस। टू बैक यू अप बेसिकली। तो एक वो मेंटालिटी कहीं न कहीं जेन ज़ी में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग नहीं सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, राइट? तो और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऐसी कोई चीज़ अब्रॉड एक्सिस्ट करती है। लोगों को ऐसा ज़्यादा लगता है कि हाँ, ये सब इंडिया में है और एक सर्टेन कंपनी, वी ऑल नो अबाउट दैट, बट अ सर्टेन कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, हू इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, राइट? एंड for some time you pay a sum of money. So for 20 years you pay X amount of money, and then at a certain point after like that you can get the money मनी back, बैक, यस। right? तो आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, यहाँ पे स्पेशली कनाडा में। तो मैं ये बात करना चाहूँगा आपसे कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोगों को सरप्राइज़ करती है व्हेन यू टेल देम अबाउट दिस? कि हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है कनाडा में कि आप ऐसा इंश्योरेंस यहाँ पे भी बाय कर सकते हो? कि ज़्यादातर लोगों से मेरी बात होती है, राइट? तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि पता नहीं, आई डोंट नो, पहले से ही दिमाग में बैठी हुई है कि इंश्योरेंस ये है कि भाई मेरे जाने के बाद किसी को मिलेगा, तो मैंने क्यों लेना है? पहले तो ये चीज़ है, राइट? तो वो पहले तो एक चीज़ चेंज करनी ज़रूरी है कि ऐसे नहीं है कि भाई आपके जाने के बाद ही वो मिलेगा। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? कि समझो कि अ, विदिन लाइक आपके पास इंश्योरेंस है, आप 20 ईयर के 30 ईयर जो भी आप पे कर रहे हो, राइट? तो आफ्टर दैट यू हैव एक्सेस फॉर लॉट ऑफ कैश, राइट? आपके पास कवरेज तो है ही, चलो आपके पास परमानेंट इंश्योरेंस है तो आपके पास लाइफ टाइम का इंश्योरेंस रहेगा। अगर टर्म इंश्योरेंस है तो आपके पास कुछ टर्म का इंश्योरेंस रहेगा, राइट? पर बेसिकली उसमें कैश वैल्यू का ऑप्शन है, और बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपना अगर कुछ हो जाता है तो आप फैमिली को कवर कर सकते हो। बेसिकली इंश्योरेंस इस चीज़ लिए होता है कि आपके पास सारी चीज़ें होती है, घर है, गाड़ी है, फैमिली है, किड्स है। अगर कुछ होता है फिर कैसे आप उसको वो करोगे?
तो वो एक लोगों में है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। पर कनाडा की लाइफ़ के हिसाब से मुझे लगता है कि एवरीवन हैज़ टू बी लाइक एनीथिंग लाइक टर्म इंश्योरेंस और परमानेंट इंश्योरेंस कुछ भी होना चाहिए कि क्रिटिकल लाइफ़ इंश्योरेंस कुछ भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कल उठ के कुछ भी होता है एटलीस्ट फैमिली कैन सर्वाइव राइट? राइट। आई हैव ये नोटिस चीज़ दैट कि यहाँ पे लोगों को मे बी अगर पता है नहीं है पता नहीं, लेकिन they don't have that mentality or that point of view, right? They think that insurance is more for people who only have liabilities, but that's not true. So ये जो आपने बात की is about somebody who has an established life here in Canada, like they have house, they have car, kids, family, everybody here. और लोगों को एक ये भी चीज लगती है कि it's expensive. Is that true? अगर देखो मैं बात करूँ तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन द मार्केट राइट? कि टर्म इंश्योरेंस है, परमानेंट इंश्योरेंस है, होल लाइफ इंश्योरेंस है। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर आप सिंगल हो और आपको ऐसे लगे कि भाई मैंने ज़्यादा पैसे नहीं पे करने हैं, तो वो ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस में चले जाओ, टर्म Okay, इंश्योरेंस ले लो। I'll stop you right there. आपने 3 इंश्योरेंस मेंशन किए। जी, Can you just explain briefly the difference between 3 of them and the target audience कि किसको वो चीज़ ज़्यादा सूटेबल है ओके, of all 3? ओके। तो टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस है टेम्पररी इंश्योरेंस, बेसिकली इसका नाम है टेम्पररी इंश्योरेंस। तो आई कैन से इट्स अ प्योर इंश्योरेंस। उसमें आपको क्या है कि आपको कवरेज ही मिलेगा। जो हम कैश वैल्यू की पहले बात कर रहे थे वो। कवरेज यू मीन कि अगर आपको कुछ हो जाता है, तो ही वो तो इंश्योरेंस काम में कुछ हो आएगा। जाता है मीन्स डेथ। डेथ डेथ देयर इज स्पेसिफिक। ओनली वन ऑप्शन दैट। अगर आपको कुछ अगर समझो कि मुझे मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि टर्म होता है कि टर्म 10 है, टर्म 20 है, टर्म 30 है, टर्म 35 है। पर आप मैक्सिमम आप 65 तक ही ले सकते हो। मतलब 65 ए इयर्स की या एज तक एज ही तक आप ले। ही आप इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। उसके बाद वो रिन्यूएबल है पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता कि भाई आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। तो वो ये प्योर इंश्योरेंस है। आपको सिर्फ़ आपकी लाइफ़ को कवर करेगा। अगर विदिन दैट पीरियड अगर आपको कुछ होता है, अगर आपका दैट समझो कि मुझे मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है, मुझे कुछ हुआ है, तो वो पैसा अगर मैंने समझो कि मैंने $5 लाख का मैंने लिया है, तो वो फैमिली को जाएगा बट विदिन दैट पीरियड। तो टर्म इसीलिए उसका नाम है टर्म इंश्योरेंस कि टर्म है उसपे, प्योर इंश्योरेंस है। राइट। कैश वैल्यू उसमें कुछ नहीं रहेगी। मतलब हाँ, आप कैश वैल्यू यू मीन कि आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वापस नहीं मिलेंगे तो आप अनलेस अंटिल डेथ हैपन राइट। और वो जाएगा बेनिफिशियरी को कि जो भी आपका फैमिली मेंबर रहेगा वो। राइट। अगर आपने किसी माइनर को रखा है तो वो जाएगा ट्रस्ट में। और ट्रस्ट फिर जब वो आपकी एज होगी लाइक 18 की 16 की तब वो आपको ट्रस्ट वो पैसे रिलीज करेंगे। राइट। कोई बार होता भी है कि अगर कुछ हुआ कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का डेथ हो गया, अगर एक्सीडेंट हुआ दोनों का डेथ हो गया, अगर किड्स माइनर है तो लाइक वो ट्रस्ट में जाता है कि ये माइनर है अभी वो छोटे हैं राइट। तो ये चीज़ है ओके, सो दैट्स अबाउट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? परमानेंट इंश्योरेंस है वो रहता है लाइफ टाइम। अच्छा। लाइक समझो कि आप जितने जितने टाइम तक आप हो तब तक वो आपके साथ रहेगा इंश्योरेंस। यानी मैं बोलता हूँ कि 100 इयर्स का इंश्योरेंस है वो। तो उसमें ये है कि थोड़ा वो एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू टर्म इंश्योरेंस। पर उसमें ये है कि आपके पास 100 इयर्स का कवरेज है प्लस आपके पास उसमें कैश वैल्यू भी जनरेट होती है। मतलब कि आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे एट वापस सम पॉइंट। वापिस मिलेंगे यस। अगर समझो कि आपने आपने 20 इयर्स का आपने पे लिया है परमानेंट इंश्योरेंस में और आपने 20 इयर्स में समझो कि आपने 30,000 आपने उसमें एज अ प्रीमियम आपने डाला हुआ है राइट। तो बेसिकली मेरे हिसाब से वो 30,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों कि आपके पैसे जो है हर मंथ एवरी मंथ जो आप पे कर रहे हो इज गोइंग टू द इन्वेस्टमेंट। राइट। सो दिस वाज माय पॉइंट कि यू आर कवर्ड फॉर लाइफ, आपको एक इंश्योरेंस मिल रहा है, उसके साथ-साथ आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। इन्वेस्ट भी हो रहे हैं। दिस इज़ द मेंटालिटी जो हमारी देसी कम्युनिटी में हाँ, बेसिकली होती है, ज़्यादा राइट? गुजरातियों में ये कि होता है कि हम हाँ, भर रहे हैं तो आना कि चाहिए भाई मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वापस। अगर मैं पैसे दे रहा हूँ,
तो मुझे एट सम पॉइंट मेरे पैसे वापस चाहिए वापस आना चाहिए, yes. और विद इंटरेस्ट. We didn't just, yeah. Interest in this term is basically you're investing, right? So when you say ki you're investing this money, where does the money go specifically? Okay, basically in Canada there are like two things. The main source की बात कर रहा हूँ कि एक होता है कि म्यूचुअल फंड है. म्यूचुअल फंड तो ज़्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में इतना पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड है कि आपका पैसा सीधा जाएगा स्टॉक मार्केट में, वो म्यूचुअल फंड है. एक सोर्स है, दूसरा एक सोर्स है सेग्रीगेटेड फंड. तो वो सेग्रीगेटेड फंड ये है कि आपका वो म्यूचुअल फंड प्लस जीआईसी का कॉम्बो है. तो अगर कोई मुझे अगर समझो कि मैं आपकी पॉलिसी आपने मेरे से पॉलिसी ली है, राइट? तो आपका पैसा मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डालूँगा, क्योंकि देयर आर लाइक रिस्क, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट का पता ही है आपको, फ्लक्चुएट बहुत होता है, Hmm. राइट? तो मैं स्टॉक म्यूचुअल फंड में नहीं डालूँगा, मैं आपका पैसा डालूँगा सेग्रीगेटेड फंड्स में, राइट? तो सेग्रीगेटेड फंड्स में ये होता है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है. उसका रीजन क्या होता है? रीज़न ये है कि वहाँ पे जीआईसी लगा हुआ है, जीआईसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, राइट? जो तो कि स्टूडेंट्स पे करते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं. जीआईसी में वो दैट्स पैसे जीआईसी. डलवाते हैं, यस. तो इसीलिए डलवाते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ है, आपका पैसा सेफ है. अच्छा. तो इसीलिए म्यूचुअल फंड प्लस जीआईसी वो एक कॉम्बो है. मैं बोलता हूँ हाइब्रिड प्लान. तो उसमें क्लाइंट का पैसा सेफ होता है और जो भी फंड्स मेरे इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, आई गेस आई स्टार्टेड लाइक अराउंड 2008-9, राइट? स्टॉक मार्केट एवरीथिंग. तो और यहाँ पे थोड़ा फंड्स का थोड़ा अलग है, पर बेसिकली इंडेक्स फंड्स ये वगैरह तो कॉमन हर जगह पे. समझो कि इंडिया में भी इंडेक्स फंड्स है, यहाँ पे भी इंडेक्स फंड्स है, यूएस में इंडेक्स फंड्स है, राइट? तो ज़्यादातर क्लाइंट के पैसे इंडेक्स फंड में मैं डालता हूँ. When you say index fund, it's you referring to something like S&P 500 S&P 500 कि और जो भी काफ़ी यूएस फंड्स की यूएस की. यूएस की जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज है उसका एक फंड होता है. तो इफ यू बाय that one particular stock of S&P 500, you're investing in 500 different 500 companies. कंपनीज. Right. तो ये है. तो बेसिकली यूएस एंड कनाडा मिला के टोटल 3000 के ऊपर फंड्स है टोटल, यूएस एंड कनाडा. तो मेरे इतने साल के नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैंने कुछ फंड्स निकाले हैं कि जिसमें वो फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं. Are you talking about segregated funds? सेग्रीगेटेड. अच्छा. तो तो वो फंड मैंने निकाला है कि जिसमें क्लाइंट का फ़ायदा रहेगा. अगर समझोगे आपका इंश्योरेंस का पैसा है वो उसमें जाएगा. समझोगे आप मंथली 200 पे कर रहे हो एग्ज़ाम्पल, तो वो $200 वो आपके फंड्स में जा रहा है. अगर वो फंड्स अगर ईयरली समझोगे 20% 25% परफ़ॉर्म कर रहा है, तो सोचो कि आपकी वैल्यू कितनी आगे जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स, Right. क्योंकि आपने 20 ईयर्स पे करना है आपके इंश्योरेंस के लिए. Okay. So now अब जबकि हम बात कर रहे हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करनी है एवरी मंथ यस, फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स. राइट? तो वो जो अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होती है? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड कि जो डिसाइड करता है कि आप मंथली इतने पैसे देंगे? वो कौन सी चीज़ें सो होती बेसिकली अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो सबसे पहले हम करते हैं एफएनए, फाइनेंशियल नीड एनालिसिस. वो किस बेस पे होता है कि क्लाइंट की डिमांड क्या है और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. समझो एग्जांपल कि अगर कोई सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, उसके पास अगर घर नहीं है, कि लाइक और चीज़ें कोई बिज़नेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर हम वो उसके बेस पे आपको इंश्योरेंस सजेस्ट करेंगे कि भाई आपकी नीड इतनी है, आप इतना इंश्योरेंस ले सकते हो. है? अगर मतलब कि आपकी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, उसके बेस पे उसके बेस पे आप अपना इंश्योरेंस लो. कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लायबिलिटीज़ हैं $100,000, so there is no point of getting an insurance 50,000. who is that pays you $50,000, यस, right? Because ultimately आप डेट में रहोगे Debt. 50,000 की अगर कुछ होता है तो. तो ये है. Go on. तो ज़्यादातर बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ कनाडा की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अराउंड 500,000 मैं सजेस्ट करता हूँ. पर कोई बार क्लाइंट हमें मिलते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, राइट? तो वो भी करते हैं, पर पहले हमारा काम ये है कि हमने नीड एनालिसिस करना है कि आप अगर हाँ, कोई ऐसे क्लाइंट भी हमें मिलते हैं कि नहीं मुझे 3 लाख का ही चाहिए, पर एज़ पर द एफएनए 5 लाख की उसे रिक्वायरमेंट है, राइट?
तो हम बैठ के उसे डिस्कस करते हैं कि अगर कल उठ के कुछ अगर होता है आपको, तो आपकी नीड इतनी है और आप इतना इंश्योरेंस ले रहे हो, तो दो इन बिटवीन जो गैप है, वो आप कैसे फुलफ़िल करोगे? राइट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझने वाली बात है। क्योंकि ज़्यादातर लोग होता है कि यार मैं क्यों हर महीने $200 डालूँ, ओके मैं $300 डालूँ, राइट? पर वो इस बेस पे होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राइट। आपके पास चीज़ें क्या-क्या है? घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, कल उठ के कुछ हुआ तो आप बच्चों का एजुकेशन कैसे करोगे? राइट। घर कैसे आप समझोगे? अगर मुझे कल उठ के कुछ होता है तो मेरी वाइफ़ कैसे सर्वाइव करेगी? आई हैव 2 किड्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, यू नो? Especially in a country and the economy like Canada is in right now, It's it it's is very tough very tough to to survive. survive. Yeah, yeah, yeah. So that's why everyone has to at least Think about it. think about it, at least some things, at least one insurance, like term insurance, like permanent insurance or whole insurance, anything like that. एक चीज़ ये भी है कि just to make it clear कि टर्म इंश्योरेंस इज़ मच चीपर देन योर परमानेंट इंश्योरेंस, Yes, क्योंकि परमानेंट इंश्योरेंस में आपको अपने पैसे वापस मिलते हैं। मिलेंगे। तो वो उसका डिफरेंस क्या होता है? लाइक फॉर एन एग्जांपल, somebody who goes to get a term insurance and a permanent insurance, उसमें प्राइस डिफरेंस कितना हो सकता है? प्राइस डिफरेंस मेरे हिसाब से समझो कि अगर आप एग्जांपल के अमाउंट की बात करें कि अगर आपने 5 लाख का अगर कवरेज लिया है टर्म इंश्योरेंस, तो मेरे हिसाब से अराउंड आपका $70-80 में आपका आ जाना चाहिए 5 लाख का। वही चीज़ परमानेंट इंश्योरेंस आपकी डबल हो जाएगी, अच्छा। क्योंकि आपको उसमें कैशबैक पूरी लाइफ मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपने कैशबैक वन टाइम ही लेना है, पूरी लाइफ लेनी है आपने कैशबैक। 100 जब तक आप जी रहे हो तब तक आपने कैशबैक लेनी है। कैशबैक यू मीन कि जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए और जो उस पे जो उसका ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम्स, ओवर द टाइम। वो जब आप बंद करते हो पैसे भरना, जैसे कि आफ्टर 20 इयर्स, देन द पीरियड स्टार्ट्स कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हो। वापस ले और आप मल्टीपल टाइम उसको विथड्रॉ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि वन टाइम ही विथड्रॉ करना है। जैसे कि इंडिया में सिस्टमिक विथड्रॉल प्लान होता है। एसआईपी है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, तो वैसे आप अगर समझो कि आपकी आफ्टर 20 इयर्स आपकी नीड है कि भाई मुझे 50,000 चाहिए अभी, तो राइट। आप 50,000 निकाल लो। बाकी जो पड़े हैं वो ग्रो होते रहेंगे। फिर आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स आपको लगेगा ही नहीं अभी मुझे और चाहिए, मैंने मेरा घर अपग्रेड करना है कि नया घर लेना है, बड़ा घर चाहिए। तभी आप निकाल सकते हो। कुछ भी कोई भी काम के लिए आप निकाल सकते हो मल्टीपल टाइम्स, ऐसे कोई लिमिट ही नहीं है कि आपने वन टाइम ही निकाला है। तो इसीलिए इस ये इंश्योरेंस का चार्म ये है कि आप मल्टीपल टाइम आपकी कैश वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो पूरी लाइफ। और आपका कवरेज तो है ही, वो इंश्योरेंस इज गिवन हाँ, वो कि तो हाँ, है ही, आपका लाइफ इंश्योरेंस तो है, है ही। लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे कनाडा में एक कम्युनिटी है जूइश कम्युनिटी। वो ये चीज़ बहुत बिलीव करती है। जैसे ही घर में कोई बॉर्न होता है छोटा बच्चा, पहले लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं परमानेंट। क्योंकि पता है कि लाइफ इंश्योरेंस ये चीज़ आपकी वेल्थ क्रिएट करेगी। राइट। नॉट ओनली कि ये इंश्योरेंस है, आपकी वेल्थ, क्योंकि बेसिकली अगर समझो एग्ज़ाम्पल कि आज मैंने मेरे बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस ली है, तो उसका पैसा मैं भी यूज़ करूँगा, मेरे बच्चे भी यूज़ करेंगे और उसके आने वाले बच्चे भी यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड उसकी लाइफ इंश्योरेंस है ना। राइट, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप अपने पैसे उसके अंदर रखते हो कि निकाल देते हो आफ्टर 20 इयर्स और व्हाटएवर द टाइम पीरियड इज। नहीं, अगर आप निकाले फिर भी वो ग्रो तो हो ही रहा है ना। अगर आपने समझो एग्ज़ाम्पल कि 100,000 आपके है अंदर, अकाउंट के अंदर है। 100,000 में से आपने समझो कि 50,000 विथड्रॉ कर लिए। 50,000 जो अंदर अकाउंट के अंदर है, तो वो वापस ग्रो होंगे वहाँ से। अच्छा। तो ये चीज़ है। अच्छा। तो अगर समझो कि मेरे बच्चों के लिए अगर एग्जांपल कि आज मेरे बच्चों के पास, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के पास 1 मिलियन की इंश्योरेंस है, राइट? तो मेरा प्लान ये है कि मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेना है। क्यों? कि मुझे पता है कि मेरे पास भी खुद लाइफ इंश्योरेंस है, मेरे बच्चों के पास भी है, तो मेरे पास कैश एक्सेस बहुत आएगा हम्म। आफ्टर 20 इयर्स, राइट? मतलब कि जब आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तो यू विल हैव अ पोर्टफोलियो एंड एन अमाउंट जो ओवर द टाइम ग्रो होता है, जिसके बेस पे आप रिटायरमेंट भी ले सकते हो। रिटायरमेंट भी कर सकता हूँ, क्यों तो मेरे पास है पैसे इतने। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टर्म हो सकती है अलोंग विथ योर टीएफएसए और व्हाटएवर जो कन्वेंशनल अकाउंट्स है जो लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा ये भी उसके साथ जुड़ के एक
पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर वेल्थ सकते आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है। पर लोगों को दिमाग में ये है कि इंश्योरेंस है, हैं। राइट, वो ही एक एक वर्ड है, वो ही लोगों को यहाँ पे है कि लाइक इंश्योरेंस मुझे क्यों चाहिए। राइट। काफ़ी लोग मैंने ऐसे फैमिलीज़ भी मैंने देखे हैं कि उसके पास काफ़ी लायबिलिटीज़ है, फिर भी इंश्योरेंस नहीं है। हुँ, ओके। क्योंकि मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल भी हुए हैं कि लाइक दे फैमिली लाइक लिटरली सर्वाइव, यू नो। मैं आपको पूछूँगा एग्ज़ाम्पल्स के बारे में, क्योंकि आप कोई रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देके बता सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ऐज एक फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप व्हाट अमाउंट आर यू गोना पे, एंड इज़ इट बेनिफिशियल कि आप जल्दी चालू करो? क्योंकि आपने बोला कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, तुरंत ही ले लेते, उसका रीज़न क्या है कि जब बच्चा यंग होता है तब अमाउंट में कुछ डिफरेंस होता है? यस, एज इंश्योरेंस में एज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर समझो एग्जांपल कि मैंने मेरे बच्चों के लिए ली है, तो अभी वो जब मैंने मेरे लाइक मेरा बेटा 2 साल का था तब मैंने बाई करी थी। मेरी बेटी 0 की थी तब मैंने बाई करी। दोनों की 1-1 मिलियन की है। मुझे पड़ी अराउंड $70, $1 मिलियन का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस परमानेंट। अगर वही चीज़ अगर कोई अगर 20 इयर्स की एज है वो लेता है, तो उसको अराउंड 120, 130 में पड़ेगा, क्योंकि एज है। और अगर वही चीज़ अगर समझो कि आप लेते हो कि आपकी अगर एज है 30 एग्जांपल, तो आपको वही चीज़ 150 $170 में पड़ेगी। क्योंकि एज है। एज बहुत बड़ा प्ले करती है। इसीलिए लाइक ऑलवेज़ आई लाइक जब मैं क्लाइंट को मिलता हूँ तो मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ कि आप जितना अर्ली इसमें एनरोल करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। राइट, कि आप मतलब द यंगर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, क्योंकि आप उससे फ्री भी जल्दी हो जल्दी जाते फ्री हो रहे हो ना, क्योंकि अगर एग्जांपल कि आपने 20 ईयर में स्टार्ट करा है, तो आप 40 में आप फ्री हो जाओगे। 40 के बाद तो कितनी लाइफ पड़ी है, आपने घर लेना है, आपने शादी करी है तो बच्चे हैं, कहीं घूमने जाना है, बिज़नेस लेना है, वो पैसे से बिज़नेस भी कर सकते हो। हो। राइट, आपके पास है पैसे, आपको किसी आपने ऐसे नहीं कि भई मैं अभी मेरे पास सेविंग नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या अब मुझे जॉब ही करना पड़ेगा? नहीं, आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से आप विथड्रॉ कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ विट वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट इंश्योरेंस। परमानेंट इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में आपके पास कैश एक्सेस ज़ीरो है। राइट, आप वो प्योर इंश्योरेंस है, इसीलिए बोला ना प्योर इंश्योरेंस। राइट। और उसमें टर्म लगा है कि आपको मैक्सिमम 65 तक की, क्योंकि उसके बाद रिस्क ज़्यादा है। ज़्यादा है, तो क्योंकि कंपनी आपको क्रिटिकल इलनेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते बढ़ हैं उस जाते हैं। एक वो चलो एज के। क्रिटिकल इलनेस थोड़ी अलग चीज़ है, पर टर्म इंश्योरेंस में ये है कि आफ्टर 65 के बाद वो रिस्क ज़्यादा रहता है ना, राइट, कि अगर समथिंग हैपन देन कंपनी हैज़ टू पे, यू नो। राइट, तो ये चीज़ है कि कंपनी ने टर्म कोई भी कंपनी में आप चले जाओ कि टर्म लगाई है कि टर्म 10, टर्म 20, टर्म 30, टर्म 35, पर मैक्स आप 65 तक ही जा सकते हो। उसके बाद अगर जो आपने रिन्यू करवाना है इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर यू, तो इससे अच्छा आप बोलोगे भाई बंद ही कर दो। क्योंकि मंथली आपका हज़ार-हज़ार डॉलर का प्रीमियम रहेगा राइट। टर्म इंश्योरेंस में, और कवरेज भी कम हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को पता है कि मैंने कल वो कुछ हुआ तो मुझे पैसे देने हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये है कि कंज्यूमिंग समबडी हू इज़ कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग सिगरेट्स और स्मोकिंग इन जनरल और एनीथिंग, व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक फॉर समबडी लाइक दैट हू इज़ गेटिंग एन इंश्योरेंस? लाइक एज and their habits. How does it, like, combining both of them? How does it affect your आई insurance? गेस इन दैट केस आई गेस एज डज़न्ट मैटर, Okay. बिकॉज़ they are like, they are alcoholic and smoker as well, right? Because they both are like, life threatening, the Habits. products, right? So अगर आपको इंश्योरेंस मिलेगा पर आपका प्रीमियम बहुत हाई होगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, Hmm. क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, राइट? तो कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर आप अर्ली एज में भी अगर समझो कि अगर कोई 25 है, राइट? अगर वो स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अगर वो इंश्योरेंस हम उसका अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई बार कंपनी ऐसे भी बोलती है कि हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते, कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई बार कंपनी ने दे दिया कि समझो कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो उस पे रेटिंग सिस्टम लगाएगी। वो रेटिंग सिस्टम ये होती है कि आप अगर समझो कि मैंने किसी का 500,000 का कवरेज माँगा है, तो कंपनी ऐसे बोलेगी कि भाई ये इसमें रेटिंग सिस्टम है ड्यू टू दिस 2 थिंग्स,
तो वो पैसे आप ज़्यादा पे करो 500,000 के लिए। न और नहीं तो आप अगर इतने पैसे प्रीमियम पे नहीं करना है तो आप कवरेज कम कर सकते हो। तो अगर 500 से हमें आधा पे जाना पड़ेगा 250 के व्हाटएवर, डिपेंड ऑन क्लाइंट कि क्लाइंट का बजट क्या है। राइट। पर इंश्योरेंस मिलना टफ है, ये चीज़ है। और कंपनी एक और भी ऑप्शन देती है आपको कि अगर समझो कि कोई स्मोक कर रहा है, तो कंपनी ऐसे बोलती है कि अभी आप इंश्योरेंस रेटिंग सिस्टम पे ले लो, बाद में हम आफ्टर 1 ईयर हम उसका वापस मेडिकल करेंगे। अगर मेडिकल में वो क्लियर है, तो हम उसको रेगुलर में स्विच कर देंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग सिस्टम? सो वो क्या रेटिंग होता है? सिस्टम में होता है कि जब कोई किसी को कुछ हेल्थ इश्यू है, ऐसा नहीं कि उसमें स्मोक ही है कि ड्रिंकिंग ही है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कुछ भी है, ऐसे कोई भी चीज़ है कि जो रिस्क है लाइफ को, राइट? तो कंपनी बोलती है कि हम उस पे रेटिंग लगाएँगे। वो रिस्क ज़्यादा है ना, तो आइदर कंपनी लुकिंग फॉर मोर प्रीमियम, कहा तो आप वो ही प्रीमियम में जाना चाहते हो तो आप कवरेज कम कर दो। हुँ, तो रेटिंग सिस्टम है, अगर राइट, किसी को कुछ कंडीशन है तो। राइट। ऐसे नहीं कि आपको अगर कंडीशन है, अगर आप स्मोक कर रहे हो कि ड्रिंक कर रहे हो कि कुछ भी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कि आपको रेगुलर इंश्योरेंस में बहुत कम चांस है। मतलब टू मेक इट सिंपल, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, somebody who's 25, there are two people who are 25 years old, one is a smoker, one is a non-smoker, and they both want coverage for 500,000. Say for the person who's not smoking, who doesn't have any habits, is paying $100, and for the same amount of money, this person who's smoking is not gonna get coverage of 500,000. Probably they'll get coverage of 250 if they want to pay the same amount of money. Yes, and if that other client wants to go with the 500,000, then he has to pay or Pay she has to the pay double double the amount of money. because it's a मतलब condition. अगर एक स्मोकर को भी 500,000 का कवरेज चाहिए, कंपेयर टू अ नॉन स्मोकर, दे वुड पे डबल। डबल, मोर देन डबल, यस। सो दैट्स व्हाई लाइक अगर अगर कोई इंश्योरेंस अगर प्लान कर रहा है तो बेटर कि आप अर्ली एज में ले लो, कि अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है बेटर टू बाय इट। बाद में नेवर नो, अगर कोई कंडीशन आ गई तो इट्स टफ टू हैव एनी इंश्योरेंस और यू हैव टू पे मोर प्रीमियम। लेकिन most of the people who work in Canada, they have insurance through work as well, right? कि like कोई कंपनी, अगर मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो कंपनी मुझे एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। जी। तो व्हाट इंसेंटिव डू आई हैव टू गेट अ न्यू इंश्योरेंस, और लाइक कोई डिफरेंस होता है जो आपको कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसमें, और जो इंश्योरेंस की हम बात करें उसके, यस, उसके बारे में? अगर जो कंपनी वाला इंश्योरेंस है वो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस है। जो कंपनी हमें आपको पे कर रही है कि भाई मुझे पे कर रही है तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस No. है। So just to, I'm gonna tweak my question. ओके। So, for example, I have a coverage from my company, यस। and if I go to a pharmacy to get a medicine or something, I get a coverage कि हाँ नो कुछ दैट कुछ दैट इज चीज़ें दैट इज मुझे। दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, वो आपका हेल्थ प्लान है, ओके, जो जो जॉब से हमें मिलता है, वो हमारा वो आपका हेल्थ प्लान है। तो इसीलिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको कवरेज है जॉब से मिल रहा है। हुँ, अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करो तो आपको जॉब से भी लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। तो वो क्या होता है कि आपका जो ईयरली है बेस पे, तो उसका वो अगर कुछ होता है तो डबल फैमिली को जाएगा। तो 2 अलग चीज़ है। ओके, वन है फॉर हेल्थ एंड वन फॉर लाइफ। द 2 ओके, डिफरेंट थिंग्स देयर आर 2 देयर डिफरेंट। एम्प्लॉयी प्रोवाइड यू। ओके, यस। मतलब जो एक एक वो इंश्योरेंस है जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते यस, हो, यस, जब आप व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, when you go get a massage, or go to a chiropractor, or यस। get your eye glasses, prescription glasses and stuff like that, वो इंश्योरेंस अलग वो होता है अलग है। और लाइफ इंश्योरेंस अलग। लाइफ इंश्योरेंस अलग है, 2 चीज़ कंपनी देती है हमें। राइट। और वो आपका क्वेश्चन ये भी था कि अगर आपके पास जॉब पे लाइफ इंश्योरेंस है तो आप कहीं और से क्यों ले रहे हो? आपका वो था, राइट? तो बेसिकली वहाँ पे आपको कवरेज कम मिल रहा है कि आपका जो बेस पे है ईयरली, उसका आपको अगर कुछ होता है तो डबल जाएगा फैमिली को। समझो कि आपका ईयरली बेस पे है 100,000 ईयरली, तो ओनली आपकी फैमिली को 200,000 ही मिलेंगे, अगर कुछ कुछ यानी डेथ हैपन होता है तो।
हुँ, तो इसीलिए और जॉब का ये है कि आप जब तक जॉब पे हो तब तक है। अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपका वो चला गया। तो वही है कि आपका टाइम फिर आपका वो चला जाएगा, कि राइट, अगर आप बाहर से अब तभी सोच रहे हो मैंने बाहर से क्यों लेना है, पर वो टाइम चला गया और बाद में आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो राइट। इसीलिए कि अगर चलो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि जॉब से मिल रहा है, लाइक एटलीस्ट यू हैव फ्रॉम आउटसाइड एटलीस्ट यू आर सेफ कि लाइक मेरे पास इतना है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, यू आर सेफ। सो यू हैव वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, राइट? यस। आप बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हो। आप कोई एक एग्ज़ाम्पल ऐसा दे सकते हो जहाँ पे किसी क्लाइंट ने एक इंश्योरेंस लिया और वो इंश्योरेंस उनके लिए सही नहीं था और उसके बाद कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे उनको इंश्योरेंस यूज़ करना पड़ रहा है, वो कैसे चीज़ काम करती है? अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरा क्लाइंट ही है, अभी भी है क्लाइंट, क्योंकि अभी पॉलिसी उसकी एक्टिव है। तो उसका क्या हुआ था बेसिकली कि उसने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लिया था। पेरेंट्स यहाँ पे आए थे विज़िटर पे, तो विज़िटर वीज़ा इंश्योरेंस लिया था, राइट? तो तभी मैंने सजेस्ट किया था कि आप 100,000 का इंश्योरेंस ले लो और 6 मंथ्स का ले लो, राइट? तो बेसिकली 6 मंथ्स का वीज़ा होता है, राइट? अगर कोई इंडिया से आता है यहाँ पे तो बेसिकली वो मतलब एक नॉर्मल विज़िटर वीज़ा विज़िटर जो आप यहाँ पे रह सकते हो, द टाइम लेंथ इज़ 6 मंथ्स? 6 मंथ्स। ओके। मल्टीपल टाइम आ जा सकते हो, पर अब मैक्सिमम आप 6 महीने ही रह सकते हो हुँ, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा, राइट? तो ज़्यादातर क्लाइंट को हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप 100,000 का लो और एटलीस्ट 6 महीने का आप पूरा ले लो, राइट? क्योंकि 100,000 का इसीलिए कि अगर यहाँ पे कनाडा में ये हमारा हेल्थ केयर ऐसा है कि कुछ भी होता है, चलो हमें इतना पता नहीं चलता कि हम कैनेडियन हैं, राइट? तो हमें सारा कवर्ड है। पर अगर कुछ भी होता है, छोटी चीज़ भी होती है, आपको 20, 30, 40,000 डॉलर का बिल ऐसे ही बना देंगे। अगर कोई छोटा-सा फ्रैक्चर भी हुआ, 30,000 का बिल बनेगा आपका। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, दे कैन यूज़ थिंग्स लाइक ओहिप, यस। ओंटारियोज़ तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम टू cover themselves, लेकिन somebody who is a visitor has to pay the money. has to pay and I guess mandatory has to buy insurance because it's like they have a age. First they have a age, so it's like anything can happen, right? Right. तो वो क्लाइंट ने क्या किया था कि वो आई डोंट नो पैसे बचाने के चक्कर में है कि पता नहीं, वो क्लाइंट ने ओनली मेरे पास से 3 मंथ्स का इंश्योरेंस लिया और ओनली कवरेज लिया 50,000 का। तो सिचुएशन ये बना कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय क्लाइंट लाइक आफ्टर 2 मंथ्स, उसकी मदर को हार्ट अटैक आ गया। अभी रिसेंटली हैपन। तो हार्ट अटैक आ गया मदर को और हॉस्पिटल चली गई, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहे क्लाइंट। सारा चीज़ें बाईपास वगैरह चीज़ें हुई। अ, सारी ट्रीटमेंट ए टू जेड हो गई। बिल बना 120,000 का। तो 50,000 का कवरेज था, बिल बना 120,000 का। 70,000 क्लाइंट हैज़ टू पे बिकॉज़ क्योंकि कवरेज उनका ओनली 50,000 $50,000 का का ही कवरेज था। हुँ, बाकी के 70,000 टॉप ऑफ ही पे करना है, राइट? और यहाँ पे मेडिकल सिस्टम ऐसी है कि अगर आप एक बार हॉस्पिटल चले गए ना, अगर आपको कोई बड़ी कंडीशन है, वो आपको जाने नहीं देंगे। आपकी ट्रीटमेंट, क्योंकि इतनी रिस्पेक्ट है लोगों की, राइट? कि आपको ट्रीटमेंट करेंगे, राइट? बेसिकली हुँ, तो इसका ये 120,000 का बिल बना, 120,000 कैनेडियन डॉलर, राइट? और कवरेज ओनली 50,000। राइट। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर। तो अभी चलो कंडीशन सही नहीं थी कि मैं वो टाइम पे ऐसे बताता कि मैंने सजेस्ट किया था कि ये ले लो, ये ले लो। अ, मैंने हेल्प किया उसका जो एटलीस्ट 50,000 का जो कवरेज था वो दिलाने का मैंने हेल्प किया उसको, उसको मिल भी गए 50,000। पर अभी 70,000 जो है उसके ऊपर 20 इयर्स का काइंड ऑफ मॉर्गेज जैसे डाल दिया। एवरी मंथ दे हैव टू पे। राइट। तो मतलब जो गवर्न एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी था, दे आर पेइंग इट मंथली। monthly because 70,000 is big amount, right? So they cannot pay. If like someone has like a lot of money, then they can pay. But so that's why like always we are suggesting like go for these, but people like they wanna like
समटाइम्स दे से मनी चल जाएगा, चल कर जाएगा, लेंगे, देख वो चीज़ लेंगे, है, वो चीज़ है, जो मेंटालिटी होती है, जो नहीं होनी चाहिए, नहीं गलत है, होनी राइट? चाहिए। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था इंश्योरेंस, क्योंकि बेसिकली विज़िटर वीज़ा इंश्योरेंस इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। लोग करते हैं कि कुछ नहीं होगा, पर जब होता है तब ऐसी सिचुएशन बनती है, और अभी का रिसेंटली है मेरे पास ये केस, मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। आई वाज़ फील्ड सो बैड कि शायद उसने एटलीस्ट 100 के का लिया होता तो एटलीस्ट 20,000 रहता, पर वो 100 का 50 के का ही लिया, ओके। पैसे बचाने में। कभी ये तो बात हो गई कि आपने एक इंश्योरेंस लिया जो वर्क नहीं किया आपके लिए। जी। कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, किसी ने इंश्योरेंस लिया और इट्स गुड कि उन्होंने इंश्योरेंस लिया क्योंकि बाद में उनको हेल्प हो गई? जी, मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, हमारी टीम का इंसिडेंट था। तो एक फैमिली था, लाइक एज एज यानी 45 टू 50 अराउंड, राइट? तो कोविड के टाइम पे इंडिया चले गए थे, लाइक आफ्टर कोविड इंडिया चले गए थे। पर तभी भी थोड़ा इंडिया में तो चल ही रहा था कि कोविड का चल ही रहा था थोड़ा बहुत कि किसी को हो गया ये वो, राइट? तो क्लाइंट ने थोड़े टाइम पहले ही इंश्योरेंस बाय किया था फॉर ईच लाइक 500,000 परमानेंट इंश्योरेंस। तो उसके हस्बैंड को वहाँ पे मेडिकल कंडीशन कुछ पता नहीं कोरोना हो गया कि सही नहीं हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए और डेथ हो गई वहाँ पे अर्ली एज में, लाइक अंडर 50, ही वाज अंडर 50। तो सिचुएशन टफ थी कि चलो हम पैसे से किसी की लाइफ रिप्लेस, वो कंपैरिजन करना टफ है कि भाई चलो आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना, पर अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखो, अगर वो ना होता तो वो उसकी वाइफ कैसे सरवाइव करती। राइट। तो हमने उसको 5 लाख का चेक दिया था। तो वो सिचुएशन, वो जब हमें हमें चेक हमने दिया तब हमें इतना वो कर रहे हैं कि लाइक वी आर लाइक वी आर लाइक गॉड फॉर हर, कि लाइक मुझे इतना मिला, पैसा मिला, चलो हस्बैंड तो वो पर्सन के हम रिप्लेसमेंट तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट वो सरवाइव कर सकती है पूरी लाइफ। तो ऐसी ऐसी जो सिनारियो बनते तब होता है कि लाइक नो, इंश्योरेंस होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। राइट। सो देयर आर बहुत सारे लोग हैं जो आई एम श्योर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं, जी। लोगों को हेल्प करना कि इंश्योरेंस आप ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो एक कॉमन इंसान को जिसको कुछ पता नहीं इंश्योरेंस के बारे में, पूछनी चाहिए अपने एडवाइज़र से कि कौन-सी चीज़ें इन्वॉल्व्ड है जो इंश्योरेंस में बाय कर रहे हो उसके अंदर? तो वो कौन-कौन सी चीज़ें होती है जो एक इंसान को पूछनी चाहिए कि हाँ, अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या-क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड है उसके अंदर? राइट। तो बेसिकली अभी अभी मेरे पास ऐसे इंश्योरेंस भी आते हैं कि रिव्यू में आता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि लोगों ने गलत गलत इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो हम अभी काफ़ी, मैं तो काफ़ी, मेरे पास काफ़ी है कि रिव्यू करके हम चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि नॉलेज नहीं होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, राइट? अभी मैंने आपको पहले बताया टर्म है, परमानेंट है, होल लाइफ है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एजेंट की, एडवाइज़र की बात करता हूँ, कि अपने कमीशन बनाने के चक्कर में वो कुछ भी दे देते हैं। सामने वाले को तो वैसे भी, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप तो वैसे भी बैठोगे तो ओके-ओके ही करोगे। ठीक है, अगर ये एडवाइज़र है, इतने टाइम से काम कर रहा है, तो सही दे रहा होगा, पर ऐसे नहीं है। आप हर एक आप ट्रस्ट कर लेते हो सामने वाले बंदे पे कि हाँ, उसको पता है वो क्या कर रहा है तो कुछ सही एडवाइस दे रहा जी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे, अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि भाई है। राइट। निकुंज ये क्या है? पर ज़्यादातर 90% लोगों को नॉलेज नहीं होता है, तो वो सामने वाला जो देता है, एडवाइज़र जो देता है, वो ले लेता है। तो ऑलवेज़ मैं क्लाइंट को, अगर मेरा भी क्लाइंट हो, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप मेरे से इंश्योरेंस ले लो। मैं जब भी किसी से मेरी अपॉइंटमेंट होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सारे जितने भी इंश्योरेंस में सारे टेबल पे रख देता हूँ, कि समझाता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस ये है, परमानेंट ये है, होल लाइफ ये है, राइट? और इस चीज़ में आपको ये फ़ायदा है। तो आपका भी ऑप्शन, आपका सिलेक्शन रहेगा कि आपने किस में जाना है। पहली चीज़ ये है कि नॉलेज देना।
वो ले ना ले वो दूसरी चीज़ है। आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरा इंश्योरेंस बेचना है। सामने वाले का वो बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं, कल उठ के उसको फ़ायदा होना चाहिए। राइट। तो उसको पहले पता होना चाहिए कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, सबसे पहले ये, राइट? मैं कोई टेम्पररी इंश्योरेंस, और वो कोई क्लाइंट ऐसा है कि भाई उसे ऐसे है कि मैं 100 ईयर्स के लिए मुझे तो ये कवरेज मिल रहा है। तो बेसिकली होता है उसके पास टर्म इंश्योरेंस। वो 100 ईयर्स कवरेज नहीं हो मिलेगा क्योंकि उसको समझाया नहीं है तभी। तो सबसे पहले आपका कवरेज क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कैश वैल्यू तो वो सेकंड थिंग है, पर पहले आपका कवरेज कितना है, कि पूरी लाइफ का है कि कुछ टर्म का है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ज़्यादा पे कर रहे हो और परमानेंट में जा रहे हो, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जो हमने बात करी जो फंड्स की, कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर कहाँ रहे पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं जितने लोगों को भी मिलता हूँ ना, मैं पूछता हूँ किसी के पास, सब मोस्टली लोगों के पास होता है कि भाई हाँ, मेरे पास है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। पर अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ कि कहाँ पे जा रहे हैं? आई डोंट नो। कितने आ रहे हैं? आई डोंट नो। ये चीज़ है, आप इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हो, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना परसेंटेज ईयरली ग्रोथ आ रहा है उसको पता नहीं, तो तो उनको उनको पत पॉइंट क्या है? उनको पता कैसे चलता है जब ओके तो इंश्योरेंस ले लिया जी, किसी इंसान ने, वो पैसे भर रहे हैं एवरी मंथ, उनको कब और कैसे पता चलता है कि उनका पैसा कहाँ है और कितना ग्रो कर रहा है? ओके। अभी एज़ अ एडवाइज़र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एवरी 6 मंथ और एवरी ईयर आई हैव टू कनेक्ट विद माय क्लाइंट। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यहाँ पे ये हो रहा है तो कोई कनेक्ट ही नहीं कर रहा है। एक बार आपने एग्ज़ाम्पल कि आपने मेरे से इंश्योरेंस लिया है, राइट? तो आप वो आपने बाय कर लिया, तो चलो आपका तो आपके पास कवरेज है। पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि एवरी ईयर मैं आपको आपका स्टेटमेंट आए, मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपके साथ वापस अपॉइंटमेंट फिक्स करूँ। हम बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि आपका ये पोर्टफोलियो है, ये चल रहा है। राइट। पर करते नहीं लोग, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मैंने देखा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आप एज़ अ क्लाइंट आपको एडवाइज़र को फ़ोन करना है ऑल ऑल द टाइम कि भाई मेरा पोर्टफोलियो क्या चल रहा है, राइट? और अगर कुछ नहीं सही चल रहा है तो वो एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको चेंज करें। ऐसे में नहीं बोल सकता कि भाई हाँ, मेरे पास जो है, मैंने जो फंड्स डाले वो ऑलवेज़ परफ़ॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई बार ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट डाउन, कोई फंड्स नहीं परफ़ॉर्म कर रहा, तो वो मुझे चेंज करना है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं एडवाइज़र हूँ, राइट? पर लोग नहीं करते, मार्केट में ऐसे है। तो जब कोई इंश्योरेंस ले रहा है, ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर मतलब एक लोग एक इंसान जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका काम खत्म हो जाता है जब वो इंश्योरेंस ले ले लेता है, लेता है। लेकिन उसके बाद आपका काम शुरू होता एडवाइज़र का काम स्टार्ट होता है कि मैंने उसको लाइफ़ टाइम सर्व करना है। है। राइट। ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैंने पॉलिसी मैंने बेच दी, बात खत्म, ऐसे नहीं है। उसको सर्व करना है, राइट। वो मेरा काम है और वो लोग करते नहीं, और ज़्यादातर लोग करना चाहिए। इसीलिए लोग भागते हैं ना इंश्योरेंस से, कि एक बार ले लिया और फिर बाद में कैंसल भी करवाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, कैंसल भी करवाते हैं क्योंकि एडवाइज़र से कि कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिलता है कि मेरा क्या चल रहा है, राइट? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मतलब मैं अगर आपको पूछूं कि एक बार कोई बंदा आपसे इंश्योरेंस लेता है, जी। उसके बाद व्हाट इफ यू आर नॉट वर्किंग एज एन इंश्योरेंस एजेंट एनी मोर, तो वो किससे कम्युनिकेट करेगा? ओके, अगर समझो एग्जांपल कि मैंने कोई, क्योंकि हम तो डीलर है, राइट? तो हमारे पास सारी कंपनीज़ है इंश्योरेंस की और हम बैंक के साथ भी डील करते हैं, राइट? तो बेसिकली अगर समझो कि मैंने आपको पर्टिकुलर कोई एक कंपनी की पॉलिसी दी है, राइट? तो अगर मैं कल उठ के मैं नहीं काम कर रहा हूँ, तो आप सीधा कंपनी से भी कनेक्ट कर सकते हो। और वो कंपनी आपको एक बंदा प्रोवाइड करेगी कि आज अभी से आपका ये एडवाइज़र होगा और अगर कुछ भी है आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि वो कंपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट? ऐसे नहीं कि चलो मैं एडवाइज़र हूँ, मैं कल उठ के मैं हो सकता है मैं काम छोड़ दिया, पर कंपनी तो वहीं पे है ना, राइट? तो ये चीज़ है कि आप कंपनी से कनेक्ट कर सकते हो, कंपनी अपना बंदा प्रोवाइड कर सकती है। और दूसरा एक ऑप्शन है, अगर मैंने काम छोड़ दिया है तो मैं जिसके अंडर में हूँ, तो वो पॉलिसी उसके अंडर में चली जाएगी मतलब बेसिकली। आपका सुपरवाइजर जो भी है। जो भी मेरा जो है, जो टीम है हमारी, तो उसके अंडर में चली जाएगी। राइट। जो मेरा एसएमडी है, तो उसके पास चली जाएगी। तो ये चीज़ है कि अगर वो छोड़ दिया, तो उसके ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली आपको कहीं न कहीं से तो आपको सपोर्ट मिल ही जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको आप
कहीं आप इन द एयर हो ऐसे नहीं रहे। आपको सपोर्ट पर हाँ, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर काम छोड़ा है, तो आपको कनेक्ट करके फिर वो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बार ऐसे भी होता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं सारे मेरे क्लाइंट से कनेक्ट करूँगा कि मैं अभी से ये काम छोड़ रहा हूँ, तो अभी के बाद आप ये बंदे का कि ये पर्सन का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी सारी पॉलिसी इसमें चली गई है। हुँ, हुँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि मैं आगे का पर्सन का इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ अपने क्लाइंट के साथ, अगर ओके, मैं नहीं हूँ। तो ये बात हो गई पूरी परमानेंट इंश्योरेंस वाली। जी। और आपने 2 में मेंशन किए इंश्योरेंसेस, एक क्रिटिकल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा कौन-सा था? नहीं, एक हमने टर्म डिस्कस किया, एक परमानेंट किया और अभी एक तीसरा है होल होल लाइफ, होल यस लाइफ। सॉरी। यस, यस। तो वो क्या होता है? होल लाइफ बेसिकली वो परमानेंट इंश्योरेंस जैसे ही वर्क करता है, पर होल लाइफ में क्या होता है कि उसमें डिविडेंड होता है। एवरी ईयर आपको डिविडेंड मिलेगा उसमें। तो समझो कि परमानेंट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, पर वो कंपनी डिसाइड करेगी कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। फिक्स होता है वो डिविडेंड। वही एक डिफरेंस है, वरना वो वर्क करेगी सेम परमानेंट जैसे ही, पर वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, परमानेंट से भी एक्सपेंसिव होती है। इसीलिए ज़्यादातर जिसकी एज है उसको हम होल लाइफ सजेस्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर बच्चों के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं 0 टू 5 ईयर्स एज है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, पर नॉट के कोई 20 का है, 25 का है, 30 का नो। बहुत एक्सपेंसिव रहेगा और उसमें डिविडेंड बेस है, तो आपको एवरी ईयर डिविडेंड उसमें आपको मिलता रहेगा। ओके, हाँ जी। और उसमें मैं चलो अपना फंड्स डालूँगा भी, पर वो डिविडेंड के रूप में क्लाइंट को मिलेगा पैसा, ये होता है। और डिविडेंड मेरे हिसाब से आप 6-7 टू 8% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिक्स आपको मिलेगा, या मार्केट जैसे भी चल रहा हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा। इतना फिक्स्ड है। मतलब काइंड ऑफ परमानेंट इंश्योरेंस आपका डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, कैसा चल उसके हिसाब से ग्रो होता है जी, और ये डज़न्ट मैटर कि डज़न्ट मार्केट क्या मैटर। कर रहा है, आपको फिक्स 8% फिक्स मिलेगा। फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। काइंड ऑफ आपकी जो ये बैक होम में इंडिया में हमारे पास एफडी नहीं होती है कि आपने 10 साल की एफडी कराई तो फिक्स आपको इतने डबल, ट्रिपल वॉटर जो भी है मिले, वो ऐसे है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कोई लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि भाई मैं रिस्क क्यों लूँ? पर एक्सपेंसिव होता है। राइट, कंपैरिज़न टू टर्म एंड परमानेंट एक्सपेंसिव। ज़्यादातर सजेस्ट कर सकते हैं 0 टू 5 इयर्स एज और 65 के बाद के। कि वो कि किसी को अपना फ्यूनरल कॉस्ट कवर करना है, तो उसको दे सकते हैं। पर कितना कवरेज मिलेगा? 10,000, 15,000, 20,000, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छा, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव। फिर ओनली फ्यूनरल कॉस्ट कवर करने के लिए। अच्छा, अगर समझो कि कल उठ के मैंने कोई इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है मेरे पेरेंट्स के लिए, और मुझे फ्यूनरल कॉस्ट कवर करनी है, तो मैं होल लाइफ ले लूँगा मेरे पेरेंट्स के लिए। राइट, एटलीस्ट मुझे वो श्योरिटी रहेगी कि भाई मुझे 15-20 हज़ार जो भी है मुझे मिलेगा, तो एटलीस्ट उससे मैं सारा वो कर सकूँगा। तो ये है, तो 2 ही एज के बंदे ये ले सकते हैं, नॉट कि एवरीवन। एंड ये एक्सपेंसिव, प्रीमियम ज़्यादा होता है उसका। राइट, यस। पर ज़्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई 20, 25, 30 वालों को भी होल लाइफ देते हैं। क्यों? कमीशन अच्छा होता है, हुँ, करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंश्योरेंस बाई कर रहे हो, आप होल लाइफ में ना जाएँ। राइट। मतलब एक एक सर्टेन एज के लिए जो लोग यंग हैं, उनके लिए होल लाइफ इज़ नॉट नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल। उनके लिए परमानेंट परमानेंट इंश्योरेंस इज़ इंश्योरेंस मोर इज़ बेस्ट सूटेबल। इंश्योरेंस कि आपके पास कवरेज है, पैसे मिलेंगे, कैशबैक है, और आपको उस विथड्रॉ भी कैशबैक करो, आपको टैक्स भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपको टैक्स उस पे कुछ नहीं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपको नो नो टैक्स, वो भी एक बेनिफिट्स है राइट, कि नो टैक्स। तो कनाडा में आपको पता ही है कि टैक्स हर चीज़ पे टैक्स है, तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। राइट, जी। इंटरेस्टिंग। आई नो you're also somebody who can give financial advice as well about what kind of account somebody should have कि इंश्योरेंस एक अलग बात हो गई, जी, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो अलोंग विद द इंश्योरेंस। जी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अगर एक एडवाइस देना चाहोगे, तो वो क्या होगी? अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, तो मैं सबको बोलूँगा आप एक टीएफएसए खोलें। कोई भी बंदा, वो स्टूडेंट है कि वर्क परमिट पे है कि पीआर है कि सिटीज़न है, टीएफएसए आप ज़रूर खोलें।
क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर कोई इमरजेंसी में अगर आपको कुछ पैसे का ज़रूरत हो गई तो आपके पास एक्सेस रहेगा कि भाई हाँ मेरे पास टीएफएस अकाउंट। और टीएफएस में कोई आपको वो ऐसे नहीं है कि आप अगर रिक्वेस्ट डालिए विड्रॉ का आपको टाइम लगेगा। राइट अवे 1-2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। मेरे हिसाब से 12 to 15% आप ग्रोथ पकड़ के चल सकते हो, ज़्यादा मिलेगा कम नहीं। मतलब जो इंडेक्स फंड की आप बात कर रहे थे, वो वो ही सेम वो इंडेक्स फंड सेम आप ही है, अपने टीएफएस टीएफएस अकाउंट में पे भी बाय यूज़ कर करता हूँ, सेम सेम सेम। राइट। और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स तो यही है कि आपको कभी भी एक्सेस है। और वो छोटी-छोटी, क्योंकि अगर आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो एक छोटी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? तो ये एक बेनिफिट है। और आपको टैक्स फ्री है पहले तो, आपको टैक्स नहीं पे करना। मतलब अगर जो भी पैसे आप उसके अंदर डाल रहे हो, जब भी आप वो निकालोगे, जी, तो आपको ज़ीरो जो भी टैक्स। ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर सो से मैंने $100 डाले, जी, उसका 150 डॉलर्स हो गए। जब भी मैं वो पैसे विथड्रॉ करता हूँ, तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा। प्रिंसिपल पे तो वैसे भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका $100 है, उस पे तो वैसे भी, जो $50 आपका ग्रोथ हुआ है, उस पे आपको ज़ीरो टैक्स है। तो बेनिफिट ये है कि अगर ज़्यादातर जो पीआर है कि सिटीज़न है उसके पास लिमिट ज़्यादा होती है। समझो कि मेरी बात करूँ, मेरे पास 100,000 की लिमिट है एग्ज़ाम्पल। तो मैंने 100,000 डाले, कल उठ के वो 100,000 300,000 बन गए। तो मुझे 200,000 पे कोई टैक्स नहीं देना है, ज़ीरो टैक्स। राइट। तो सबसे बड़ा कनाडा में एक ही चीज़ ऐसी है कि जिस पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, टीएफएसए एंड योर लाइफ इंश्योरेंस। बाकी कोई आपको ऐसे बोले कि ये चीज़ में आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, वो गलत बोल रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको टैक्स नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट 2 चीज़, आपकी टीएफएसए और आपका लाइफ इंश्योरेंस, बाकी टैक्स सबसे नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सिर्फ़ 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 अकाउंट्स ऐसे हैं, ऐसे है, जहाँ से आप जब पैसे विथड्रॉ करते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं नहीं पड़ता। लगेगा, ओके। वरना हर एक चीज़ पे लगेगा। जैसे कि आरआरएसपी हो गया, जो रिटायरमेंट रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। आरईएसपी एजुकेशन प्लान है, उस पे भी लगेगा। फिर लीरा है, लीफ है, रीफ है, एफएचएस है। सबके एफएचएसए में एक बेनिफिट ये है कि आपको टैक्स टैक्स क्रेडिट मिलेगी एफएचएसए में, जो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगी। देयर इज़ गोना बी लाइक हम डिफ एक और एपिसोड हम लोग करेंगे, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कौन सारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कि कौन से इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को सिर्फ़ आरआरएसपी और टीएफएसए के बारे में ही पता है, पता है, ज़्यादातर लोगों को। उसके अलावा भी चीज़ें होती है, होती है। राइट? तो कि मैं जब शायद हम एक और एपिसोड करेंगे क्योंकि मैं इसके जब बारे में। क्लाइंट के पास मैं जब जाता हूँ ना, जब बात होती है तो हमें तो ऑब्वियसली कि एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट? तो जब मैं ये अकाउंट्स बोलता हूँ कि ये हमारे अकाउंट्स होते हैं एज़ पर द कैनेडियन गवर्नमेंट के, तो लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं। इतने अकाउंट? हमें तो बस 1-2 ही पता है जो टीएफ और टीएफएसए का भी कांसेप्ट लोगों को वो गलत कांसेप्ट है दिमाग में लोगों का। तो ये क्लियर करना ज़रूरी है। टीएफएसए का फुल फॉर्म है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, पर एक्चुअली वो सेविंग अकाउंट नहीं है। यस, ओके, एक्चुअली वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। राइट। तो आप अपने टीएफएसए में कुछ भी बाय कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक बाय कर सकते हो, जीआईसी बाय कर सकते हो, बॉन्ड बाय कर सकते हो, कुछ भी बाय कर सकते हो आप, ईटीएफ्स बाय कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपने लोगों को दिमाग में टीएफएसए का वो नाम ही ऐसा है ना, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि मैंने बैंक में जाके मैंने टीएफएसए अकाउंट खोल दिया, बात खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट। आप हुँ, उसमें कुछ भी बाय कर सकते हो और जो भी ग्रोथ बनेगा वो टैक्स फ्री है। तो राइट। मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ लोगों को, सबसे पहले आपका टीएफएसए का रूम यूज़ करें। टीएफएसए, टीएफएसए, टीएफएसए ओनली। क्योंकि आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। जो भी ग्रोथ रहेगा वो ज़ीरो टैक्स है। अगर आपने उसमें से एग्ज़ाम्पल का आपने स्टॉक कोई बाय करा है अंदर और वो एकदम ही चल गया और आपको उसमें समझो कि बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, ज़ीरो टैक्स। राइट। हाँ, पर उसकी भी न्यूएंसेस होती है कि यू कैन नॉट अब आप ट्रीट योर टीएफएस एज़ डे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नहीं कर सकते राइट, क्योंकि राइट। मैं यही पूछने वाला था। ये गवर्नमेंट अकाउंट है, क्योंकि राइट अवे वो फिर फ्लैग करता है सिस्टम में गवर्नमेंट के, तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते विल टॉक अबाउट दिस मोर इन अनदर एपिसोड, हो। जहाँ पे हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है दोनों में, कौन-सा अकाउंट मोर सूटेबल है कौन-सी इन्वेस्टिंग स्टाइल के लिए। देयर इज़ गोना बी अनदर एपिसोड वी गोना डू। बट हाँ, फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड द इंश्योरेंस, यही था आज का पॉडकास्ट। दैट्स अबाउट इट। कैसा लगा आपको? मज़ा आया। मज़ा आया?
ओके। तो मेरा मेरा तो काम ही ये है कि डिस्कस करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। पर मैं ऑलवेज़ मेरा एक गोल रहता है कि क्लाइंट को मुझे सर्व करना है, नॉट कि मुझे सेल करना है, राइट। सर्व करना है। कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है मैं सारा पास ऑन कर दूँगा। फिर क्लाइंट फिर वो बाय करे ना करे वो उसकी चॉइस है। नेवर फोर्स एनीवन राइट। सो एक 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसे नहीं है कि मैं मेरा पर्पस देखूँगा कि नहीं आप बाय कर लो, नहीं, ऐसे नहीं कभी करना। लोग करते हैं मार्केट में तो इट्स ये लोगों ने देखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि कोई मेरा फ्रेंड है और मुझे बोला है ये बाय कर लो मैंने कर लिया। इट्स फॉर लाइफ टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और एक डिसीजन आपको पूरी लाइफ आपको करेगा वो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट राइट। खुद के साथ। राइट। हाँ, तो मैंने टर्म इंश्योरेंस मुझे किसी ने दी थी। अच्छा, मेरे मतलब मे आपको खुद एक मेरे कोई खास नहीं मुझे दी थी टर्म इंश्योरेंस। मैंने पे किया 7 इयर्स मैंने और मेरी वाइफ के लिए। आई पेड ऑलमोस्ट $15,000। देन आई स्विच टू परमानेंट। राइट। सो इसीलिए मैं कभी नहीं करता कि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे के मैंने कुछ अपने पर्पस के लिए मैंने दे दिया नहीं। राइट। तो ये इज़ फॉर लाइफ टाइम। ओके, वेल, it was nice talking to you. Thank you थैंक so much, and hope to see you again. We're gonna do another episode on the investment accounts. श्योर श्योर। But thanks for talking to us. थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। थैंक यू। Thank you. बस यही था आज का पॉडकास्ट। हमने बात की इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस कैसे आपको हेल्प कर सकता है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में, कौन से अलग-अलग इंश्योरेंस होते हैं, जो कि आपको अगर नहीं लेना है तो एटलीस्ट सोचना चाहिए, क्योंकि अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नीडेड व्हेन स्पेशली इन द इकोनॉमी द वे इट इज़ राइट नाउ हियर इन कैनाडा। it is very important to secure your future, especially if you have a family that you're taking care of, who's behind you. You need to understand that you don't only take insurance thinking that something's going to happen, but you take it to cover yourself in case if something happens. सो हाँ, बस यही था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट डाउन बिलो, लेट अस नो योर थॉट्स, subscribe the channel, like the video, and share it to your friends and the family who's here in Canada who needs to know about things like this that exist. Until next time, thank you so much for watching.